देखो क्या करना है, मैं पहले आपको आपके एग्जाम के बारे में बता देता हूं कि आप अपने एग्जाम को समझो क्या कह रहा है, एंड देन ट्राई टू प्रिपेयर इट. ओके. How many questions they are giving into your exam? 75. So out of 75 question, you have to go for 55 question. है ना? They are giving you lot of options. That means you have to leave 20 question. Every student have to leave 20 question. So your first strategy is that don't stuck into tough question and lengthy question. Choose 20 questions who are lengthy, who are tough, and you are not prepared for that 20 question. So first thing is, your first duty is that you have to leave this 20 question. Are you getting my point? Yes, sir. पहले tough question को हटा देना है. Okay? So just leave tough question. Tough and lengthy. Okay? Lengthy question. Now, so in an examination, I don't think maximum 10 question will be tough. More than 10 question will be tough. Because if more than 10 question will be tough, then this exam will be havoc for a student. The cutoff will be very low. So in general, if you will remove 20 question, then what you have only average type of basic questions, which number is mainly 55. So now you have to concentrate on 55 question. And that is average question actually, because you leave all these tough questions. Okay. And now if this is your 55 question, you can again leave next tougher question. Most toughest question you have leave from here. And now out of this 55 question, you have to, at least you have to leave again 10 question, where you are not very comfortable. You know the solution, you know the thing, but you are not very comfortable. It's just your choice. For example, for me, if I am going into exam, then I am not very comfortable for electronics because I don't do enough practice for electronics. Similarly, you have also your favorite or non-favorite thing. So after 55, you can again leave 10 question. And finally, you have to attack this 45 question in a very honest way. You have to attack it in a very honest way. What is meaning of honest way? You have to read it carefully, you have to solve it carefully, and finally you have to analyze 4 options very carefully, and then you have to tick it carefully. So mainly you have to work for this 45 question, which is actually average or simple question. Okay. So once you are going to do this 45 question, then I think there was always some error. There was always some mistake because we are human beings. So you have to take this thing. But even if you are sincerely giving each and every time in a very progressive way out of 3 hours in a very efficient way, then obviously the chance of selection is very, very positive. Okay. And don't pressurize yourself for selection part. Okay. Pressurize yourself for the learning part. Just learn hard and give your 100%. Don't unnecessarily make the thing panic कि नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं हुआ तो ऐसा कुछ नहीं होगा. होगा भी तो बहुत कुछ नहीं होगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न फिजिक्स में सीखने के लिए बहुत कुछ है. होने के बाद भी नहीं भी होगा तो कुछ नहीं होगा. आप इस एग्जाम में नहीं तो अगले एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे, अगले एग्जाम में नहीं तो किसी और एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे. बट थिंग इज दैट लर्निंग शुड कंटिन्यू. आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका माइंड स्टेट और किस एटीट्यूड से एग्जाम में जा रहे हो। एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड यह है कि आपने पढ़ाई की है, आपने कुछ सीखा है और आप और ज्यादा सीखना चाहते हो, देन यू शुड गो फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग। दिस इज ऑल अबाउट एग्जामिनेशन, दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं? So don't Yes. pressurize unnecessary with yourself and don't make unnecessary strategy. The simple strategy is that गलत क्वेश्चन नहीं करना है एग्जाम में। आसान क्वेश्चन को 100% ट्राई करनी है। जो आता हुआ क्वेश्चन है उसमें कोई सिली मिस्टेक नहीं करना है। दिस इज द थिंग यू हैव टू डू विथ योर प्रिपरेशन। और अभी आपको क्या करना चाहिए? यू हैव टू जस्ट सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। जस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लो, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। जो नहीं आ रहा है उसके लिए फिर से अपनी नोट्स देखो, अपनी कॉपी देखो, फिर से सॉल्व करो। फिर से नोट्स देखो, कॉपी देखो, फिर से सॉल्व करो। डोंट ट्राई टू रीड द थिंग, डोंट ट्राई टू मेक नोट्स। ये सब करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू सॉल्व एट रैंडम। लिया सपोज 2019 का पेपर लिया, 3 घंटे बैठा, सॉल्व किया, सारे क्वेश्चन हो गए, इट्स वेरी गुड। नहीं हुए उसके बारे में थोड़ा R&D करना शुरू किया। आज का दिन वो सारे क्वेश्चन जो नहीं हुए हैं उसके सॉल्यूशन खुद से किया। नेक्स्ट डे अनदर ईयर पेपर। सो नेक्स्ट एग्जाम के 5 दिन पहले बस आपको सिर्फ यही करना है, और लास्ट 5 डे जो आपने किया है उसी को बार बार रिवाइज करना है। कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आई थिंक सेलेक्ट हो जाओगे, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है? एनीथिंग एल्स? इट्स ओके। Yes, sir. कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो कि कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है, कहीं कुछ मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज मैं तो इन जनरल एग्जाम को ऐसे ही लेता हूं। ठीक है? सो पार्ट एंड सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन इज द जस्ट फेस ऑफ सेम कॉइन। ओके, उसको उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सर जी, अगर PYQs के क्वेश्चन लग जा रहे हैं तो मतलब क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो भी लग जाएगा? ऑब्वियसली लगेगा भाई। अगर PYQ के क्वेश्चन लग रहे हैं मीन्स आपके कॉन्सेप्ट सही हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि वहां पर जाकर के कुछ जापानीज या किसी और टॉपिक, किसी और लैंग्वेज में आएगा क्वेश्चन? यही चीज तो आएंगे भाई। बट वहां पर आपको एरर नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि आपको प्रेशराइज करके आपसे एरर करवाएगा लोग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आपको एरर नहीं करना है, 2 into 2 4 ही लिखना है, 1/4 नहीं कर देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। है ना? सो एरर नहीं करना है। प्रिपरेशन तो आपकी हो चुकी है, आपने इतने क्लासेस किया है, इतने क्वेश्चंस लगाए हैं, इतना मेहनत किया है, सो प्रिपरेशन तो हो चुका है। ठीक है? अब एग्जाम में 100% एफिशिएंटली, 100% एटीट्यूड के साथ जाकर के प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना? मे बी देयर इज सम न्यू प्रॉब्लम, बट आपके पास एनफ टूल्स है कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स में आपने इतने प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे उसको कर सकते हैं, क्या क्या है। वहां पर कोई आप नई थ्योरी तो नहीं डिराइव कर लोगे ना? एग्रीड और नॉट? जो आपने पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है। और ये हमेशा दिमाग में रखना कि क्वेश्चंस के ही अंदर सॉल्यूशंस है। यू हैव क्वेश्चन और उसी के अंदर आपके सॉल्यूशन है, बट आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, रिलैक्स रहना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो डोंट गेट नर्वस। नर्वस होने की जरूरत नहीं, उससे और नुकसान ही है। जस्ट एंजॉय करो, रिलैक्स करो, 4-5 घंटे की पढ़ाई करो, दैट्स इट। और एग्जाम के लिए एनर्जी और अपनी कंसंट्रेशन बचा के रखो। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होता है कि एग्जाम के पहले ही इतना ज्यादा मेहनत कर जाते हैं कि एग्जाम के दिन लगता है कि वो सर का सबसे बड़ा बोझ है ना? कि किसी तरह ये निकल जाए, किसी तरह ये हट जाए। नो, दिस इज नॉट एटीट्यूड। आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि आज
एग्जाम देने जा रहे हैं, आज कुछ सीखेंगे, नए क्वेश्चंस मिलेंगे, उसे सॉल्व करना है, दिस एक्साइटमेंट मस्ट बी देयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। है ना? नेगेटिव होकर के नहीं जाना है कि यार कहाँ से फंस गए हैं, इतना क्वेश्चंस किया है, पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। नो, यू हैव टू गो देयर एंड थिंक कि मुझे 45 अच्छे अच्छे क्वेश्चन चूज करने हैं, मजा आएगा करने में, बहुत अच्छा होगा सॉल्व करने में, नए नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड यस आई विल डू दिस थिंग। होना नहीं होना दैट इज डिफरेंट इशू। अब कोई बंदा आपसे ज्यादा सॉल्व भी कर देगा तो आप क्या कर पाओगे, है ना? एंड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर लिमिट। मेरी भी एक लिमिट है, आपकी भी एक लिमिट है, एग्जामिनेशन जो ले रहा है उसकी भी एक लिमिट है। सो हर एक की लिमिटेशंस के ऊपर आपको परफॉर्म करना है और आपको अपना बेस्ट देना है। दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जामिनेशन, है ना? एंड बी ऑनेस्ट, वेरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए कितना ऑनेस्ट हो। सो आई डोंट अननेसरी टिक द also यही होगा ही, नो, you have to solve it properly, give respect of this question, then pick it. Okay? Clear है ना? यस So सर। I think it is more than enough for your strategy. Strategy कुछ नहीं है, strategy सिंपल सी बात है, आसान क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, that's it. ठीक है? आप देखो आसान करते 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 आप टफ क्वेश्चन भी कर ले जाओगे। और डोंट वेस्ट टाइम इनटू सम पर्टिकुलर क्वेश्चन। कई लोगों को ऐसा होता है कि नहीं, मैंने तो भाई क्वांटम मैकेनिक्स इतना पढ़ा है, क्वांटम तो करूंगा ही करूंगा। नो, वहां हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। ओके? कई लोग का ये रहता है यार मैंने पार्टिकल फिजिक्स तो एक ही दिन पढ़ा था, लेकिन उससे तो मैं दो दो क्वेश्चन निकाल ले रहा हूं। तो आप करो ना, आपको मार्क्स चाहिए। ओके? सो डोंट बायस्ड, डोंट मेक अननेसरी स्टोरी इन योर माइंड कि वहां ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बी रिलैक्स, अपने ऊपर ध्यान दो, हेल्थ पर ध्यान दो, और अभी से थोड़ा एक्सरसाइज करने शुरू करो, है ना? और जिस समय आपका एग्जाम है उस समय 3 आवर जरूर बैठ के पढ़ो। ओके? यस सर। ये सारा चीज जरूर अपने दिमाग के अंदर रखो, क्योंकि उससे आपके हार्मोन्स और माइंड उस डायरेक्शन में फोकस होते हैं। ठीक है? और ऑलवेज टॉक टू यू पीपल जो आपको पसंद है, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात करने की कोशिश करो, उससे रिलैक्सेशन होता है। अभी तो पेंडेमिक का समय है तो बहुत ज्यादा बाहर नहीं जा सकते हो, बट डू सम एक्सरसाइज, लिसन सम सॉन्ग, रीड सम अनदर बुक देन फिजिक्स, मूवीज देख सकते हो, लॉट ऑफ थिंग यू हैव टू डू, बट रिलैक्स रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके? ओके सर। ओके, चलो, सो मंडे को हम लोग मिलते हैं ऑन द लास्ट सेशन ऑफ स्कैटरिंग। ओके? थैंक यू सर। सो कल तक आप लोग प्लीज पूरा ये दे दीजिएगा, जो भी आपका डाउट्स हो स्कैटरिंग का, तो मैं डाउट भी क्लियर कर दूंगा, है ना? थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।